السلام علیکم وعلیکم ناظرین، آج 5 ستمبر کو یوم اساتذہ کے موقع پر تحریک بقائے اردو کے علمی ادبی پیج سے ہم آپ کے سامنے ہیں، اور جیسا کہ شام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس پیج پہ ایک ہلچل ہے، ہم سب مل کر یہ ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں اور ٹیچرز ڈے کی مبارکباد سارے ٹیچرز کو دے رہے ہیں۔ میں آج کی دوسری ڈسکشن میں آپ کے سامنے ہوں اور ہمارے ساتھ اس موقع پر اس دوسرے ڈسکشن میں مہمان ہیں جناب محترم ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب، محترم خورشید بسمل صاحب راجوری سے، اور محترمہ شبانہ خان صاحبہ۔ آپ سب کو میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں آج ٹیچرز ڈے کی۔ اور یوں تو ہماری زندگی میں ٹیچرز کا بہت اہم رول ہوتا ہے ہمیشہ، اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جس کو ہم سلام کرتے ہیں، دنیا کا ہر عہدہ جس کو ہم سلام کرتے ہیں، وہ ٹیچرز کا بنایا ہوا ہے۔ تو خود ٹیچر کتنا عظیم عہدہ ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کتنا بڑا عہدہ ہے۔ اور میں آپ سبھی کو ڈھیر ساری مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے ایک ایسا پیشہ چنا، اپنے لیے ایک ایسا پیشہ، ایک ایسا پروفیشن چنا جو ہمیشہ مقدس رہا ہے، اور دنیا میں کوئی کہیں بھی ہو اس کے لیے اس کا ٹیچر، اس کا استاد ہمیشہ سب سے اوپر ہوتا ہے، اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ آج ہم جب 2020 میں بہت ساری بدلی ہوئی سچویشنز، بہت بدلے ہوئے حالات کے مد نظر زندگی کو ایک نیو نارمل کے ساتھ جینے کی تیاری کر رہے ہیں، ایسے میں آج ٹیچرز ڈے کو منانے کا طریقہ بھی بدلا ہے۔ آپ سبھی لوگوں نے آج دن بھر شاید آن لائن ٹیچرز ڈے منایا ہوگا، آن لائن مبارکباد دی ہوگی، آن لائن اپنے میسیجز دیے ہوں گے۔ یہ 2020 کا تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو یہ تیار کیا گیا ہے ایک نئی زندگی، ایک نئے طریقے سے جینے کے لیے۔ اور اس بدلے ہوئے حالات میں بہت کچھ بدلے گا، بہت سے رشتے بدلیں گے، بہت سے کام کرنے کا طریقہ بدلے گا، اور سب سے ضروری بات جو ہے، سب سے اہم بات جو ہے کہ شاید اس کے مد نظر اب ٹیچنگ کا طریقہ بھی بدلے گا، جیسا کہ ہمیں ایک اندیشہ ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، ایسے امکانات ہمیں دکھتے ہیں کہ اب پڑھانے کا اور پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بدلنے والا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہم ایک چیز کے لیے کبھی تیار نہیں ہو پاتے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ اب ٹیچر کی اہمیت ہماری زندگی میں نہیں رہ گئی۔ اب ڈیجیٹل وقت میں ہم جی رہے ہیں، اب ہم کوئی بھی سوال کر کے اس کا جواب گوگل سے پا سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ٹیچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم یہ بات ماننا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہی نہیں کہ کبھی یہ سچ ہو، لیکن ایسا لوگوں کو لگتا ہے، ایسا لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، اور آج نہیں ہوا ہے، 2020 میں نہیں ہوا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ، استاد اور شاگرد کے بیچ کا رشتہ بہت بدلا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے، استاد کا مقام و مرتبہ اور ہمارا معاشرہ، اس پر میں سب سے پہلے مجھے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب، اور بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میں ان سے یہ سوال کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا سوال کہ آپ کے حساب سے جو ہمارا ابتدائی سوال ہو سکتا ہے، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے حساب سے ایک انسان کے لیے اور ایک سماج کے لیے ٹیچر کی اہمیت کیا ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے پرتیما جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عرفان عارف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تحریک بقائے اردو کا بے حد شکریہ کہ اتنے حساس موضوع پر اور اتنے اہم دن
पर जो है मुझे मौका दिया गया गुफ्तगू करने का। सवाल बहुत चुभता हुआ भी है, बहुत अहम है और गौर तलब है, गौर व फिक्र का मुकाम भी है। जैसा कि आपने बताया कि दुनिया जो है बदलती जा रही है, तरीक़ाकार तदरीस के बदलते जा रहे हैं, हालात दिगरगू होते जा रहे हैं, गौर व फिक्र की हमारी सतह जो है वो तब्दील होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में, ऐसे हालात में इस्तिज़ा की ज़रूरत और अहमियत और उसके मकाम व मर्तबे को बहाल रखना, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के जो राह रस्म है, जो रिश्ता है, उसको पुरवकार तरीके से बरकरार रखना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। मैं इब्तदाई जो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपने कहा कि अब टीचर्स की ज़रूरत कम होती जा रही है, मैं इसे मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि जो ह्यूमन बीइंग है इसकी दुनिया में हमेशा ज़रूरत हो, वो टीचर हो या किसी भी सतह की कोई चीज़ हो। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी जो अहमियत है, इंसान की जो अहमियत है, जो उसकी कद्र है, वो रहेगी। उसका लेवल जो हो, उसकी सूरत जो हो, वो अपनी जगह बदलती रहती है और बदलती रहेगी। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन की, इंसान की ज़रूरत हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो फिर टीचर्स की ज़रूरत से कैसे हम इनकार कर सकते हैं। अब रही बात ये तदरीस का जो पहलू आता है, मैं 2-3 बातें बहुत मुख्तसर में कहना चाहता हूँ, जो सबको मौका मिलना चाहिए। कि आसान समझती है क्यों तदरीस को दुनिया, आसान समझती है क्यों तदरीस को दुनिया, ज़र्रों को ये खुर्शीद बनाने का अमल है। ये जो तदरीस है, जो इस्तिज़ा जो है तालीम देते हैं, ये बहुत गैर मामूली काम है, बहुत अहम काम है और इसको बहुत आम तौर से लेकर के इसको अहमियत न देते हुए और इस पेशे में लोग चले आते हैं और वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, पेसिमिस्ट होते हैं, आशावादी नहीं होते, वो गैर आशावादी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गुफ्तगू से पहले ये बात क्लियर हो जाना चाहिए और ये बात साफ हो जानी चाहिए कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए कि वो आइडियल टीचर हो, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए कि वो बेहतर स्टूडेंट हो। इस खलीज को, इस दूरी को समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये है, मसाइल ये है कि हम टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए। हम इस पेशे में तो आ गए लेकिन पेसिमिस्ट हो गए, हम ऑप्टिमिस्ट नहीं रहे। ये जो दिन है 5 सितंबर का, ये राधा कृष्णन जी का दिन है, यौम पैदाइश है, जिसको हम टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं। आप उनकी पूरी जिंदगी को देखिए, आप उनको याद कीजिए। देखिए, हम पहले सेशन की भी हमने गुफ्तगू सुनी कुछ आपके तहरीक बकाए उर्दू पर, पूरा फोकस जो है उस पर ये था, जो आम गुफ्तगू एक होती है, गुफ्तगू करने का जो एक तरीका आम होता है कि हमारी कदरें खत्म हो रही हैं, ये खत्म हो रहा है और ये जवाल आ गया है, यानी बगैर स्टडी की, बगैर आइडियल स्टडी की, बगैर अमीक मुताले की आप गुफ्तगू करेंगे तो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन हम इस्तिज़ा हैं तो कम से कम हमें एक विजन बेस्ड गुफ्तगू करनी चाहिए, कुछ कम्युनिटी को देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये फर्ज है। तो आप ये देख लिए कि आइडियलिस्ट जो है फिलोसफर थे राधा कृष्ण। वो मामूली आदमी नहीं थे, वो गैर मामूली आदमी थे। उनकी पूरी जिंदगी को आप देखिए, उनके जन्मदिन पर या उनको हम याद करते हैं और यौम इस्तिज़ा मनाते हैं, तो यूं ही नहीं है। एक आइडियल टीचर क्या होता है, राधा कृष्णन की जिंदगी को देखिए। तो क्या हम इख्तलाफात भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अशरे अशीर भी हम राधा कृष्णन के थॉट को, उनकी फिक्र को,
उनके काम करने के तरीक़ेकार को और उनके विजन पर हम क्या एसाज़ा किसी भी सतह पर हैं कायम या उस पर कोशिश कर रहे हैं या हमारा अज़्म है। मुझे लगता है कि हम एसाज़ा में बड़ी हद तक ये कमी आई है। देखिए, वैल्यूज ऑफ लाइफ और ह्यूमन स्पिरिट ये बहुत अहम चीज है जिस पर राधा कृष्णन ने जोर दिया था। ह्यूमन स्पिरिट को अगर कोई समझने वाला टीचर नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम जनरल गुफ्तगू करेंगे तो हम एसाज़ा और स्टूडेंट्स के बीच वही बातें करेंगे जो सब करते हैं, जो हमारा समाज करता है, लेकिन हमें समझना है कि ये कमी कहाँ है। तो ह्यूमन जो स्पिरिट है, जब हम उस स्पिरिट का मुताला नहीं करेंगे, उस ह्यूमन स्पिरिट के तहत हम काम नहीं करेंगे, हम एक बेहतर टीचर नहीं होंगे, और जब एक बेहतर टीचर नहीं होंगे तो हम एक बेहतर स्टूडेंट पैदा नहीं कर पाएंगे, और जब एक बेहतर स्टूडेंट पैदा नहीं होगा तो फिर हम मुआशरे की तामीर और मुआशरे की फलाह के लिए और मुआशरे में इस तरह के खेप तैयार करने के लिए हम एक अच्छी नस्ल को तैयार नहीं कर पाएंगे और वैल्यूज ऑफ लाइफ को नहीं समझेंगे। आज विजनलेस हमारी, आज ये समझ लीजिए कि विजनलेस हमारी जो सियासत है, मैं नाम किसी सियासत का नहीं देना चाहता हूँ, हम एसाज़ा हैं लेकिन विजन नहीं है हमारी सियासत में। तो हमारी सियासत में विजन नहीं है, हमारी तालीम में विजन नहीं है, हमारी तालीमी प्रोसेस में, तालीमी निज़ाम में हमारा विजन नहीं है, तो हम एक बेहतर कैंपस को कैसे तामीर कर सकते हैं, हम एक यूनिवर्सिटी की फिजा को कैसे खुशगवार बना सकते हैं। हमारा जो कैंपस है वो खुद मुख्तारी नहीं है, खुद मुख्तारी होनी चाहिए। जो राधा कृष्णन ने भी कहा, हमारे कॉलेजेस को, हमारे स्कूलों को, हमारे एसाज़ा को, हमारे स्टूडेंट्स को, यानी सबसे बड़ी बात है कि तालीमी इदारे को खुद मुख्तार होना चाहिए। तो जब विजन हमारी सियासत में नहीं है, हम सियासी लीडर का नाम यूज नहीं करना चाहते, हमारी सियासत कलरफुल नहीं है, हमारी सियासत कलरलेस है, हमारी सियासत में विजन नहीं है, हमारे एसाज़ा जो है रंगों में उलझ गए हैं, हमारे तालिब इल्म रंगों में उलझ गए हैं, हमारी जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है वो तब्दील होती जा रही है। हमारी जो गंगा और जमजमी जो तहजीब है, हमारी गंगा और जो जमजमी तहजीब है, हम उससे कट रहे हैं। तो फिर हम फिजा कैसे, अच्छी फिजा कैसे तालीम तैयार कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं और मौका दीजिए दूसरों को, ये कहना चाहता हूं, हमसे कई बार हमारे तालिब इल्म पूछते हैं और हमारे उस्तादों से भी मैंने ये बात सुनी और हमने खुद इसका तजर्बा किया, एक अच्छा उस्ताद कौन है, एक अच्छा उस्ताद अच्छे मुआशरे की तश्कील किस तरह से कर सकता है। तो सुनिए, एक अच्छा उस्ताद वो नहीं है, एक अच्छा उस्ताद वो है जो बेहतर तरीके से पढ़ाता है, मुताला करके क्लासरूम में आता है, बेहतर तालीम देता है, उसके पढ़ाने का तदरीसी अमल उसका बहुत अच्छा है, यूनिक तरीके से पढ़ाता है, ये उस्ताद की सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन उसको बेहतर उस्ताद का दर्जा उस वक्त तक नहीं देते हैं कि जब तालिब इल्मों को, उसके स्टूडेंट्स को, अगर हम ये देखते हैं कि जो उसकी नस्ल है, उस उस्ताद की जो नस्ल है, उसके जो तालिब इल्म है, अगर उस उस्ताद से ज्यादा कामयाब नहीं है तो टीचर कामयाब नहीं है। अच्छा उस्ताद है, पढ़ाता अच्छा है, लेकिन एक अच्छा उस्ताद वो है कि जब उसके तालिब इल्म उससे बहुत आगे जाए। अगर मैं प्रोफेसर हूं, अगर आप जो है डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो, तो आपका स्टूडेंट्स आपसे बहुत आगे जाए, तरक्की करे। एक अच्छे उस्ताद की ये पहचान है। एक अच्छा उस्ताद तालीम के साथ तरबियत पर फोकस करता है। हमारे मुआशरे में 400, 500, 1000 साल पहले का हमारा मुआशरा देख लीजिए, उस सकाफती डिस्कोर्स को हम नहीं समझ रहे हैं। हमारा मुआशरा कलरफुल कैसे होगा? 4000, 5000 बरस पहले की जो हमारी तहजीब है, हमारा शानदार जो सकाफती जो समाज है, सकाफती जो हमारा जो जखीरा है, हमारी उस पर नजर नहीं है। तो हम कैसे एक अच्छे मुआशरे को तश्कील दे सकते हैं और कैसे हम एक नई नस्ल को अच्छी तरह से, हम एक पौध को, हम एक ऐसे पौधों को लगा सकते हैं। तो मुआशरे में सवाल दोनों सतह से आई है। आज तालिब इल्म, आज तालिब इल्म कदरों के जवाल
की तरफ है, क्यों? ये एसातिज़ा में भी कहीं ना कहीं कमी है जी और स्टूडेंट्स में भी कहीं ना कहीं कमी है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने ये सही कहा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उस जगह पर अभी पहुंचे हुए हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो खुशी से अपना आप माइक को म्यूट कर लें, आप जब आपका माइक म्यूट कर लें खुशी से। खुशी खुशी सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो साफ अपना नहीं आ माइक रही है, म्यूट मुझे कर लें, बिल्कुल खराब आवाज आ रही है। जी आपकी, अच्छा तो अपना आपकी आवाजें यहाँ चूंकि साफ आ रही है, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए आप, अगर आपको पहुंच पा रही है मेरी आवाज तो। खुशी सर राजौरी जम्मू कश्मीर से हैं और वहां पर 2G के चलते बहुत कम मिल पाता है नेटवर्क, इसके लिए हम सब माजरत चाहते हैं और हम परेशानी समझ सकते हैं खुशी सर की। डॉक्टर मुश्ताक सर साहब ने बहुत ही ज़रूरी और अहम तरफ इशारा किया है शुरुआत में ही। तो अच्छी बात यह है कि हम समझ पाए कि जहाँ पे के मर्तबे और मकाम की बात होती है, तो वहाँ पे हम ये समझ पाए कि कहीं ना कहीं गलती दोनों ओर है, लेकिन गलती लेगा कौन, इस बात को मानेगा कौन, ये भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम जो हमारी जो फितरत होती है वो ये होती है कि हम दूसरे पे दोष रखते रहें। शबाना खान मैम हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत काम किया है एज अ टीचर और उर्दू की आप खादिमा हैं और एक बहुत ही संजीदगी से अपने पेशे को आपने लिया है। और कुछ लोग एक किसी किसी के लिए हम कह सकते हैं ना कि पेशे को अपनी इबादत की तरह रखा है, तो आपने अपने पेशे को उस तरह से रखा है और बहुत खूबसूरती से अंजाम दे रही हैं अपना जो भी आपका फर्ज है एज अ टीचर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मैम कि आज पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद टीचर्स डे की। आज का दिन है कि अपने सारे टीचर्स को हम बहुत ही स्पेशल फील कराएं कि आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। और सवाल मेरा ये है, हालांकि टीचर से सवाल करना बड़ी हिम्मत का काम होता है, मैं वो काम करने जा रही हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर हम टीचर की मकाम और मर्तबे की बात करते हैं और बदले हुए हालात में ये कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही, तो ये इसका जवाब क्या है? वो बात क्यों नहीं रही जो बात हुआ करती थी कभी? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि आज यहाँ पर स्टेज पर हम असातिज़ा जो हैं वो अपनी बात रखें। दूसरी बात ये है कि आपने बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से इबादत की जाती है उस तरीके से मैंने इस पेशे को अपना रखा है। बहुत बड़ी बात है, हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, कोशिश करते हैं बस। तीसरी बात ये है कि देखिए, उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पहलू अच्छा है और कौन सा बुरा है। दरअसल ये रिश्ता वो है जिस तरीके से वालिदैन का रिश्ता होता है बच्चों के साथ, के साथ साथ चलता है, उसी तरीके से उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता भी साथ साथ चलता है। बच्चों की पहली पहचान बहैसियत उस्ताद के अपने वालिदैन से होती है। वालिदैन उनको अच्छा, बुरा, खरा, खोटा बहुत सारी चीजों की उनको पहचान कराते हैं। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा स्कूल या मदरसे जाता है। देखिए, वालिदैन बच्चे और उस्ताद के दरमियान में एक रिश्ता जो जो खुलूस का, जो मोहब्बत का होना चाहिए, ये मेरा अपना ख्याल है कि उसमें दरार कहीं पहले ही पड़ जाती है। जब बच्चा जूनियर या सीनियर केजी में जाता है तो वालिदैन बच्चों से अपने उनके उस्तादों की पहचान ऐसे कराते हैं, ये काम नहीं करोगी अभी तुम्हारी टीचर को बोलूंगी, तुमने ये होमवर्क नहीं किया है अभी तुम्हारी टीचर से शिकायत करूंगी, तुम खाना नहीं खा रहे हो अब कल देखना तुम्हारी टीचर से शिकायत करूंगी। तो क्या हो जाता है कि बच्चे और उस्ताद के दरमियान में खुलूस का रिश्ता नहीं हो पाता, खौफ का रिश्ता होता है। और बचपन बड़ा नाजुक होता है, जहन बहुत नाजुक होता है, वहां पर मोहब्बत का रिश्ता इस्तेमाल करने के बजाय
ایک خوف کا رشتہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. اور اس خوف کے رشتے میں کہیں نہ کہیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, ہم تو استاد ہیں, ہم تو بڑے ہو ہی گئے ہیں اپنی عمر کے حساب سے, لیکن بچے کا ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, اس کی ذہنی جو پرورش ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس ذہنی پرورش میں بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ قوم کے مہمان, یہ آپ سے اتنی ہی محبت کریں گے جتنے والدین کرتے ہیں, یہ آپ کو ڈانٹیں گے بھی اور یہ آپ کو پیار بھی کریں گے, یہ کرنے کے بجائے جہاں یہ خوف دلا دیا جاتا ہے کہ ٹیچر نہ ہوا وہ کوئی مجسم محبت نہیں ہے, وہ کوئی ہٹلر والی چیز ہے, تو وہاں پر ایک قرار تو پہلے ہی آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اسکول میں ماحول جو ہے, ہم یہ نہیں کہتے اسکول کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے, پر اس قدر اسٹرکٹ بنا دیا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم ڈسپلین سکھا رہے ہیں, ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں, لیکن ڈسپلین کے نام پہ اتنی سختی نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ خود کو آزاد محسوس کرانے کے لیے وہ چور راستے ڈھونڈے, کہ جہاں پر اس کو یہ لگے کہ ٹیچر نہ دیکھے تو میں یہ کام کر لوں, ماں باپ نہ دیکھے تو میں یہ کام کر لوں. ایک بہت صحت مند بانڈنگ ہونی چاہیے جو نہیں ہے. میں اپنی کلاس میں ایک مثال دے رہی ہوں, میں اپنے لیکچر میں 5 دن ویک کے 5 دن لیکچر لیتی ہوں, اور سیٹرڈے کو ہم لوگ نصاب نہیں پڑھتے. تو وہ جو اسکرین کو بار بار ٹچ کرتی رہو, وہ تصویر شاید جی, تو آپ کی میں آواز یہ آ کہہ رہی ہے. رہی جی تھی جی کہ وہاں آواز آ رہی ہے نا, جی, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جی وہاں پر وہ بانڈنگ نہیں ہونے پاتی ہے. اب جیسے میں ہفتے میں 5 دن میں لیکچر لیتی ہوں, اور 5 دن کے بعد چھٹے روز ہم لوگ جو ہیں وہ لیکچر نصاب نہیں پڑھتے ہیں, ہم سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ہم ریلیجس ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم بچوں سے ان کے پرابلم کو, ٹین ایجرس ہیں تو ان کی کیا پرابلم ہو سکتی ہے, ہم ان پر بات کرتے ہیں. تو بچوں کو یہ کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اسکول یا کالج نہیں بلکہ ٹیچر ہماری اپنی ہے, تو وہاں پر وہ اپنے استاد سے کھل کر کے بھی بات کرتے ہیں, اپنے پرابلم بھی شیئر کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ استاد کو اتنا وقت ہفتے میں نہ صحیح روز, ہفتے میں 1 دن آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح, وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ ضرور مکس اپ ہو, اس سے بات کرے, اور ہمیشہ نصاب کی بات نہ کرے, کبھی کہانیاں بھی کہہ دے, کبھی ڈم اینڈ شرارٹس بھی کھیلے, کیا اور بات ہے, کبھی جو ہے وہ بچوں کے بہت ساتھ سندر. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک شعر میں نے پڑھا ہے, اب اسی سے ملتا جلتا کوئی شعر تم بھی پڑھو. تو مطلب اس طریقے سے اگر استاد کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دوری نہیں رہ جاتی ہے, ہم کہیں نہ کہیں بچے اس سے قریب ہوتے ہیں اور بچے ہمارے قریب. شبانہ میم, مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے اور اس سے ادھک خوشی ہو رہی ہے. جی آپ کا جی فیس تھوڑا کٹ رہا, جی آپ کیمرے کو تھوڑا فیس کی طرف کریں, آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت پازیٹیو انرجی ہمیں مل رہی ہے, لیکن آپ کا فیس جی کچھ کٹ جا رہا ہے. ہاں یہ صحیح ہے. مجھے حیرانی اور خوشی ایک ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ آج دن میں ہی میری بات جی کسی سے ہو رہی تھی, اور میں یہ ان کو بتا رہی تھی کہ پہلے جو آپ یہ مانتے ہیں کہ پہلے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں ادب کا رشتہ ہوتا تھا, وہ اور اس میں ہم خوف تھا, ایک ڈر تھا جو اب ختم ہو گیا ہے. کئی سارے فیصلے ہوئے ہیں, آپ بچوں کو مار نہیں سکتے, بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے, تو بچوں کا خوف ختم ہو گیا ہے, تو انہوں نے ادب کرنا چھوڑ دیا ہے. اور جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ادب خوف سے کیا جائے وہ ادب ہی کیا, بے وہ شک عزت کیا جو ڈر کے معنی کی جائے. آپ کے اور جس بات کو ہم ایک بہت برے طور پہ لیتے ہیں کہ وہ دوست بن گئے ہیں آپس میں, مجھے لگتا جی ہے کہ ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے, تو شاگرد اور استاد کا کے رشتے میں دوستی بھی تھوڑی ہونی چاہیے. تبھی تو ہم شیئر کر پائیں گے, تبھی تو ہم سوال کر پائیں گے, تبھی تو اپنی ہم پریشانیاں شاگرد کے طور پہ بتا پائیں گے استاد کو.
बेशक होनी आपने चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है, बहुत खूबसूरत बात बोली है कि खौफ जी बचपन से ही टीचर को एक हिटलर शाही जैसा कुछ दिखा कर कि वो मारेगा, वो डांटेगा, वो तुमको ठीक करेगा, जी जी, तो कहीं वो जो रिश्ता जिसके हाथ बिगड़ में जाता छड़ी हो वो टीचर है, मतलब है। हाँ, ये छड़ी है वो कॉन्सेप्ट जो है टीचर है। वो, जी जी हाँ, तो ये बहुत शुरुआत से हम शायद गलत कर देते हैं। वो रिश्ता जो मोहब्बत का और खुलूस का और दोस्ती का होना चाहिए था, वो रिश्ता डर का बन जाता है। और उसके बाद बाकी तो अभी बहुत चीजें बदल ही गई हैं कि हम इतना जी डिजिटल हो गए हैं बिल्कुल, कि चीजें नहीं। जी जी आप डॉक्टर मुश्किल सदफ से मैं चाहती हूँ कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में खौफ होने से, डर होने से जो अदब आता है, वो अदब कितना अहम है? क्या डर जरूरी है इस देखिए रिश्ते में? देखिए प्राइमरी सतह पर मिडिल जो क्लासेस हैं, मतलब प्राइमरी सतह के जो तालिब इल्म होते हैं या हाई स्कूल तक के जो तालिब इल्म होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। वो बहुत फ़र्क होता है। टीचिंग के जो मेथड है वो भी अलग होता है, तदरीसी जो तरीक़ेकार है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो हमें हर नहज पर अलग अलग तरीके से टैकल सर करना मैं एक पड़ता है। सवाल आपसे आपकी इस बात में एक बात जोड़ना चाहती हूँ मैं पहले ही। क्या आपको नहीं लगता ऐसा कि जो भी हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल पे पढ़ाई करने पहुंचते हैं, उसकी बुनियाद या उसका बीज तो प्राइमरी में ही रख दिया जाता है? हम एग्जैक्टली प्राइमरी में जो नहीं, बनाए जाते हैं वही बड़े होके बनते हैं। देखिए मैं आज जो है उन पहलुओं पर बिल्कुल गुफ्तगू करने के मूड में नहीं हूँ जिस पर शबाना साहिबा और दूसरे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। वो एक सब जी जिंदगी का एक एक पहलू है कि उस्ताद के जी और शागिर्द का रिश्ता कैसे होना चाहिए, खौफ और डर का होना चाहिए। मैं एहतराम का उसका नाम देना चाहूँगा कि एहतराम होना चाहिए या खौफ है, डर है, ये एक पहलू है। ये ह्यूमन नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आज इस पहलू पर बात करता हूँ कि जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन है, हमारा सिस्टम जो एजुकेशन का चरमराया हुआ है। हमारे जी निसाब में या शबाना जी के स्कूल के निसाब में अगर कंटेंट ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है, वो कहाँ से पढ़ा लेंगी? 8वीं क्लास में कैसे ले सकती हैं? बच्चों को तहजीब के दर्स कैसे दे सकती हैं? या हमारी सकाफती जो डिस्कोर्स है उस पर कैसे गुफ्तगू कर सकती हैं? तो कंटेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये बहुत अहम बात है, जिस पर हमारे माहिर तालीम जितने लोग भी हैं जो गए हैं, राधा कृष्णन के अलावा जितने पढ़े लिखे लोग रहे हैं, बड़े लोग जिनको हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो कंटेंट ऑफ एजुकेशन पर जोर देना जरूरी है। हमारे जो बिल्कुल निसाबात बिल्कुल। हैं जितनी तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं, हम पढ़ाना कुछ और चाहते हैं, पढ़ाने के लिए मजबूर हो कुछ और रहे हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, हम 3 हिस्सों में हमारे माहिरीन तालीम जो है 3 हिस्सों में कंटेंट ऑफ एजुकेशन को तकसीम करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक जो है, पहला ग्रुप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। टीचर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उर्दू का टीचर, टीचर का मतलब पूरे सब्जेक्ट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, आर्ट्स एंड कल्चर का हो या सोशल साइंसेस का हो, जो वैल्यूज का हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है, जो कंसर्न जो है, हमारा जो कंसर्न है वो नेचर से उसका रिलेशन है। तो उस पर जो है हमें देखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है। हम बदलाव के नाम पर हम सब कुछ गंवा दें, ये नहीं हो सकता। हम अपनी नस्ल को अच्छी नस्ल हम पैदा नहीं कर सकते हैं। सोशल साइंसेज हमारा दूसरा कंसर्न है। सोशल साइंसेज कंटेंट ऑफ एजुकेशन का दूसरा ग्रुप है। सोशल कंटेंट में ये साइंसेज में रिलेशन ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी की जो बातें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, ये दूसरा उसका ग्रुप होता है। तो जो हमारे निसाबात हैं या सोशल साइंसेज के जो निसाबात हैं, वो हमारे एजुकेशन में कितनी तब्दीली आई है, कहाँ हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ नाम से तब्दील कर देंगे या हम कुछ एजुकेशन को हम भारी भरकम तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा जो इसका ग्रुप है, ये सुन लीजिए कि फिलॉसफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर है। कहाँ है आर्ट्स एंड लिटरेचर? फिलॉसफी कहाँ है? हमने तो तालीम से फलसफा हयात को काट दिया, राधा कृष्णन ने तो नहीं काटा। उन्होंने तो कहा था कि फलसफा हयात यानी फिलॉसफी और तालीम
का गहरा रिश्ता है, हमने काट दिया आज। वो हमारे एजुकेशन में वो कंटेंट ही नहीं है। हम समाज को क्या देंगे, हमें स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, है ना। हम सोशल लाइफ में क्या देंगे, जिसमें हमारा जो है स्पिरिचुअल जो वैल्यूज है जिसकी हम बात करते हैं, कहाँ है, सब खत्म होती जा रही है। लैंग्वेज पर हम सियासत करने लगे हैं, लिसानी तनाज़ात हम बढ़ाने लगे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने अजहान को, नई नस्ल के जहन को हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हम नई नस्ल के अजहान को किस तरह से कुंद करते जा रहे हैं। तहजीबें हमारी बिखरती टूटती जा रही हैं, हमारी कदरें बदलती जा रही हैं। क्यों? निसाबात में हम गौर नहीं कर रहे हैं। 25 साल तक एक निसाब को रखते हैं हम अपने डिपार्टमेंट में, हम जो बताना चाहते हैं स्टूडेंट को नहीं देते हैं। मुश्ताक सर, निसाब और कंटेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी तय करनी होगी। जिम्मेदारी मैं यही कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी माहिरीन की है, ये एसातिज़ा की है, इस मैदान में जो माहिरीन है उनकी है। हम एक डिपार्टमेंट में 10 साल तक एक ही निसाब तैयार करते हैं, हम जरूरतों को पेश नजर नहीं रखते। तो एजुकेशन का जो कंटेंट है, हम बेहतर नस्ल पैदा करने के लिए, और मैं फिर दोहराता हूँ राधा कृष्णन जी को, वो बहुत बड़े विजनरी आदमी थे, बहुत बड़े विजनरी आदमी थे, जो फलसफे हयात से जोड़ करके एजुकेशन को, तालीम को रखा। हम कट गए और हम कहते हैं कि हम सवाल पजीर होते जा रहे हैं, मुआशरा सवाल पजीर हो जा रहा है, स्टूडेंट्स जो है टीचर से डरता जा रहा है। हम तालीम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो जो नई पौध है वो खौफजदा है। हम बेसिक स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं हम नहीं बता रहे हैं, वो डरेगा ही नहीं। आप गुरुकुल में चले जाइए, आप मदरसों में चले जाइए, माहौल क्यों हमारी तब्दील होते जा रही है। हम एसाज़ा में वो उत्सुकता, वो जो है चार्म, वो नहीं है। हम अपने आर्टिकल्स खूब लिखते हैं, हम अपनी किताबें खूब शाये कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तालिब इल्मों की एक किताब लाने के लिए कोशिश उस्ताद नहीं करता। एक सवाल तहरीक बकाए उर्दू की ओर से आया है कि हम लोग आज इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि उस्ताद की जो कदरो मर्तबा है, कीमत है, क्या निसाब अगर कुछ, क्योंकि कंटेंट और निसाब सबके हाथ में नहीं है, ये तो आप सियासत, आपने बोला सियासत वाले या जो निज़ाम जिनका है वो तय करते हैं, बहुत ऊपर से बड़ा कई लेयर्स में काम होता है। तो क्या निसाब या कंटेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि टीचर की इज्जत की जाएगी या नहीं की जाएगी? देखिए सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ, इसी पर तो हम बात करेंगे। ये वही बात है जो आप कह रही हैं अपनी जबान से, अपने लफ्जों में, और मैं जो है सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, फलसफा हयात, यही तो बातें हैं जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन का तीसरा ग्रुप है। यही तो मैं दूसरे लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम यही अपनी नस्ल को नहीं बताएंगे, तदरीसी निज़ाम में, है ना, यानी एजुकेशन के प्रोग्राम्स में हम इस सब्जेक्ट को अगर नहीं रखते हैं, तो हम उनके ज़हनों को रोशन कैसे करेंगे। हम यही बात अपने अल्फाज में कहने की कोशिश करें। ज़बान पजीर जो हमारा मुआशरा। जी, मोहतरम खुर्शीद बिस्मिल सर का नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और ख़राब है अभी भी, लेकिन मैं खुदा का शुक्र मना रही हूँ कि वो कम से कम स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं, फ़िलहाल बहुत देर से कांस्टेंट हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं ये जो डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब ने बहुत ज़रूरी, बहुत ही अहम पॉइंट यहाँ उठाया है शुरू में ही, कि हमारा निसाब, हमारा कंटेंट, हमारी पढ़ाई जिस सब्जेक्ट पे हो रही है उसका जो कंटेंट है उसको तय करना, वो कहाँ जा रहा है, इस पर मैं जनाब खुर्शीद बिस्मिल साहब से अब उनकी राय लूंगी। आप हमें तफसील से बताएं, अपनी राय दें हमें। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज म्यूट है सर, म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है, अपना माइक खोल लें सर आप। हेलो जी, अब आवाज आ गई है? सर आ गई आप जी। हाँ, तो डॉक्टर सदर साहब, जी डॉक्टर सदर साहब ने बहुत कैमरे के सामने रखिए सर, आपका चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, कैमरे को फेस। जी हाँ जी जी जी। तो डॉक्टर सदर साहब ने बहुत ही अहम बातें की हैं, तो
खुला होने तक नहीं है, उठे उठने तक नहीं है लगे, अनम्यूट जी। और जो लोग आसपास है वो डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि सर बहुत जरूरी से बात करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और पहले बात करके फिर आगे बात को ले चलूंगा। असल मसला है ये कि हमारी जो एजुकेशनल पॉलिसी है हमारी कभी प्रायोरिटी नहीं बनी है। हमारे मुल्क में एजुकेशन इज नॉट ए प्रायोरिटी, यहाँ प्रायोरिटीज और हैं। इसका अंदाजा आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपके बजट कितना है। एजुकेशन का बजट मेरे ख्याल है बहुत, जो अगर हम उसका कंपेयर करें जो इस वक्त एडवांस सोसाइटी है उनके साथ, बहुत अहम बात, ये बहुत अहम, हाँ, बहुत कम बजट है। अच्छा आप देखिए इस बहुत कम बजट में आपके पास अच्छे स्कूल नहीं है, आपके पास अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आपके पास अच्छे टीचर नहीं है, आप अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपका टीचर आज भी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है इकोनॉमिकली, आपका टीचर कंटेंटेड नहीं है। आपकी प्रायोरिटी कहाँ है? एजुकेशन, इट इज नेवर योर प्रायोरिटी। तो लिहाजा ये सोचना कि इस हाल में जो कुछ हो रहा है ये भी बड़ा गनीमत समझा जा रहा है, चाहिए जाना चाहिए। दूसरी बात जो है हमारा जो इंडियन कल्चर था ये भाईचारे का कल्चर था, ये दोस्ती का कल्चर था, यहाँ की संस्कृति जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत का कल्चर था। आज हमारा समाज जो है इंडिया का, जो हमारी सोसाइटी है, ये जैसा कि सदर साहब ने भी कहा, आज ये रंगों में तकसीम है। और जो समाज रंगों में तकसीम हो जाता है, किसी का एक रंग फेवरेट है, किसी का दूसरा रंग फेवरेट है, वो समाज उन्हीं झगड़ों में पड़ा रहता है। ये मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़ा हुआ है, ये क्या कहते हैं पार्टी, सियासी पार्टियों के झगड़े में पड़ा हुआ है। इनकी कब प्रायोरिटी रही है? एजुकेशन, एजुकेशन वाज नेवर प्रायोरिटी फॉर इंडिया। लिहाजा ये नहीं हम समझ सकते कि कभी ये कोई बहुत बड़ा काम कर सकेगा। मुझे याद है हमारे अशफाक साहब, प्रोफेसर अशफाक साहब है हमारे पड़ोसी मुल्क के, वो जर्मनी गए, तो जर्मनी में वो कई प्रोफेसर थे। एक दिन वो किसी वजह से ट्रैफिक जाम की वजह से लेट हो गए, तो उनको कोई चालान भी हो गया, कहीं गाड़ी इनकी गलत लग गई थी। खैर कुछ दिन के बाद जब वो अदालत में पहुंचाए गए तो जज साहब ने उनसे पूछा, हाँ बताइए अशफाक आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा मैं पेशे से प्रोफेसर हूं और मेरे साथ ये वाक़ा हुआ। जो ही उन्होंने नाम प्रोफेसर का लिया, जज खड़ा हो गया, अ टीचर इन हिज कोर्ट, अ टीचर इज इन द कोर्ट। ये बात सुनकर जो बाकी कोर्ट में लोग बैठे थे सभी लोग खड़े हो गए। तो उन्होंने, प्रोफेसर अशफाक लिखते हैं कि मैंने समझा कि उनकी तरक्की का राज क्या है। हमारे यहाँ जैसे लेबर की भर्ती होती है ऐसे टीचरों की भर्ती होती है, और बिल्कुल जो रिजेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड ही इज सिलेक्टेड फॉर द टीचरशिप। यानी वो कहते हैं कि हाँ भाई अगर मैं फलां चीज ना बन सका, ये ना बन सका, ये ना बन सका, टीचर तो मैं बन ही जाऊंगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ इन हालात में, ये नहीं मैंने 50 साल एज ए टीचर रहा हूँ, हमारा जो निसाब है इसका कोई तल्लुक नहीं है जिंदगी के साथ। मैं कहता हूँ ये 5 या 10% हमारा इसके साथ ताल्लुक है। जो ये बच्चे पढ़कर निकलते हैं आज आपके सामने, वो कह रहे हैं खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ दिए। सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको? सवाल पैदा होता है बच्चा क्यों टीचर की रिस्पेक्ट करे? उस टीचर ने तो उसको फ्रस्ट्रेशन दी है, उस टीचर ने उसको दरबदर किया है। आज भी एक मजदूर जो है वो सड़क पर रोटी अच्छी तरह से कमा लेता है, लेकिन आपका पीएचडी जो है वो दरबदर फिर रहा है। वो क्यों रिस्पेक्ट करे आपके टीचर की? उसको तो जिंदगी फना हो गई है, परेशान हो गई है। तब टीचर, स्टूडेंट जो था टीचर की रिस्पेक्ट करता था जब उसकी जिंदगी फलती फूलती थी, जब उसकी जिंदगी के कामयाब के राज उसको मिलते थे, जब वो उसको की ऑफ द लाइफ मिलती थी, लेकिन वो नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि एक ही बात नहीं, हमें निसाब को भी रिव्यू करना पड़ेगा, हमें पॉलिटिक्स को रिव्यू करना पड़ेगा, एज ए होल सारी सोसाइटी को अलाउ करना पड़ेगा, हमें बजट देना पड़ेगा। हमारा टीचर जो है इसको सबसे बड़ी रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब ये कंटेंटेड भी होगा। मुझे अपने एक भाई साहब बता रहे हैं, वो कंजर्वेटर थे, वो कह रहे मैं अमेरिका में था, तो वहां से एक बाजार से गुजरा तो पीछे से एक सफेद ड्रेस वाला बंदा आ रहा था, तो दुकानों पर जो लोग थे खड़े होकर मिल रहे थे। और मैंने सोचा भाई ये कौन, कोई मिनिस्टर तो नहीं आ गए? उन्होंने कहा नहीं,
our principal is coming in the बाजार, हमारा प्रिंसिपल आ रहा है। जिस मुल्क में आपके टीचर को जो एक रिजेक्टेड माहौल है, ये रिजेक्टेड सोसाइटी है, ये तो मुझे नहीं समझ आती इसका कोई तालीमी निजाम हो सकता है, उनकी कोई तरक्की हो सकती है। यहाँ का निसाब भी बदलना पड़ेगा। यहाँ हमें बजट जो है 6% से ये 25% जाना चाहिए। हमारे स्कूल बिल्डिंग देनी चाहिए, हमें बेहतरीन टीचर देना चाहिए, और उसके बाद इसको हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टेबिलिटी भी मिलनी चाहिए। इसमें मदाखल क्यों करते हैं पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स को मदाखल नहीं करना चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्युटली सेपरेट इशू। तो मैं समझता हूँ बहुत सारा काम करने का इस हिस्से में। तो आगे हम रिक्वेस्ट करते हैं सदर साहब को कि और बात को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल की बात आपने बोली है सर। और मैं कहना चाहती हूँ खुर्शीद बिस्मिल सर के लिए कि आपने एक इतनी जरूरी और इतनी अहम बात को शामिल किया है इसमें कि आपने कहा कि बजट कहाँ है हमारे एजुकेशन में। बजट का बहुत बड़ा जो मसला है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है, पहुंच रही। जी। तो ये एक इतनी बड़ी बात आपने कही जिस मुल्क में हम मुझे नहीं मालूम कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहना जरूरी है, इसलिए कह रही हूँ कि हम सरहद पर ज्यादा पैसे लगा देते हैं, अपनी आर्मी पर और अपनी उन सारी चीजों पे हम ज्यादा इसमें देते हैं। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा पे हम अधिक पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एजुकेशन पे हम नहीं सोचते इसका बजट क्या होगा। ये बहुत कमाल की बात बोली है आपने सर। मैं इस चीज को आगे, इसी बात को मुश्ताक सर से चाहती हूँ कि सर इस बात को आप आगे बढ़ाएं कि आप इस बात को कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं, इस बात को कैसा महसूस होता है। प्रतिमा जी, शबाना जी अपने तौर पर बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, गुफ्तगू की। खुर्शीद बिस्मिल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कई पहलुओं को उजागर किया, लेकिन इतना हम लोगों को जो है मायूस भी होने की जरूरत नहीं है। चलेगी कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सदर साहब गायब हो गए। हाँ, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है सारे लोगों की तरफ। हमारे साथ मैं मुश्ताक अहमद वानी साहब को और इरफान आरिफ साहब भी अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनको जोड़ना चाहूंगी। मुश्ताक सर नमस्कार, आदाब, सलाम। जी आदाब तमाम और हैप्पी टीचर्स डे आपको। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक सर। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुश्ताक सर। मुझे आवाज मुश्ताक अहमद वानी साहब। जी एक मिनट। मुश्ताक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें। एयरफोन लगा रहे हैं। अभी आएगी। और मैं चाहूंगी कि इसमें एक बार आप इसको लेंगे लीड में, क्योंकि मेरी तरफ कॉल बिल्कुल डाउन हो रहा है। तो अगर मैं निकल जाऊं तो प्लीज आप इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल नेटवर्क डाउन हो चुका है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी आ रही है। प्रतिमा जी हेलो। हाँ प्रतिमा जी। जी सर। जी सदर साहब फरमाइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि खुर्शीद बिस्मिल साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, और एक पहलू खुर्शीद सर ने बिल्कुल दो टूक बोला जो बोला, और वो बिल्कुल लगने वाला बोला, सच बोला। जी एक पहलू देखिए, एक पहलू की तरफ की निशानदेही की उन्होंने, उसमें सच्चाई भी है।
लेकिन हमें बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत भी नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान जो है, जब तक आप लोग हैं, टीचर्स हैं, हम मायूस होते भी नहीं हैं। जी हिंदुस्तान हमेशा जो है दबाव में ही काम करता रहा है, बेहतर काम करता रहा है। और जो पॉलिसीज होती हैं, तालीमी जो पॉलिसीज हैं, तरजीहात तो होनी चाहिए एजुकेशन के हवाले से। जिस मुल्क में तरजीह जो है वो तालीम को न दी जाए, उस मुआशरे में किसी भी तरह की कोई कमी हो सकती है, इसे इनकार तो हम नहीं कर सकते। तो तरजीहात हमारी एजुकेशन की तो होनी चाहिए, ये बात तो अपनी सही है। रही बात, उन्होंने ये बात कही कि सैलरी नहीं मिलती या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें घपले होते हैं, और उसमें जो एसाजा की जो तकर्री होती है उसमें कहीं ना कहीं जो दांव पेच का जो सिलसिला, ये इंसानी नुक्ता नज़र से और समाजी जो है जो दबाव और जो पॉलिटिक्स और सियासत होती है उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन फर्द की जो सलाहियत है वो भी मायने रखती है। इसी हिंदुस्तान में मैं उर्दू का उस्ताद हूँ, इसी हिंदुस्तान में हम ये भी सुनते रहे हैं कि फुला लड़के का या उस्ताद का सिलेक्शन पैसे देकर के हुआ है, एकदम साफ बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसी हिंदुस्तान में मैं 85 नाम ऐसे गिनवा दूं जिनकी अपनी सलाहियत, अपने फर्द की सलाहियत, इंडिविजुअल सलाहियत की बुनियाद पर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। सदफ साहब, अच्छा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया। तो हमें जो है जो निगेशन ऑफ लाइफ है उस पर कम ध्यान देते हुए, है ना, जो पॉजिटिव है सोच हमारी, उसको अगर हम एक ट्रैक पर लाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हम मुआशरे की तामीर के लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। एक बात और भी है बहुत गौरतलब कि इन डिफरेंट एटीट्यूड जो है इंसान की, किसी भी सिलसिले में, एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी की फिजा को बेहतर बनाने की कोशिश हो, या वैल्यूज को अच्छा करने की कोशिश हो, या स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशंस को बेहतर कर, तो इनडिफरेंट जो एटीट्यूड है वो नुकसानदेह है, वो हमारी लाइफ के लिए नुकसानदेह जो है, वो ह्यूमन एंडेवर के लिए सही नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाता है। यानी हमारी जो कोशिशें हैं उसको ब्रेक लगा देती हैं चीजें। इसलिए इन डिफरेंट एटीट्यूड के तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और सियासत में बजट, सियासत में सिलेक्शन प्रोसेस, सियासत में ये जो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जो सियासी लोग पैदा होते हैं, इन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से निकले हुए तालिब इल्म होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा जो ये मंदिर है तालीम का, ये मस्जिद है जो तालीम का, और इल्म का जो ये काबा है, ये यूनिवर्सिटियां जो हैं, इसमें हमें वो माहौल बनाना है, एसासा की वो खुद तरबियत याफ्ता एसासा हो कि वो बेहतर तरबियत तालीम के साथ दे सके अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए कि वो निगेशन ऑफ लाइफ की तरफ ना जाएं, उनका इंडिफरेंट एटीट्यूड ना हो, ह्यूमन एंडीवर उनका बरकरार रहे। और एक सबसे बड़ी बात है कि मोरल फ्रीडम जो है वो बहुत जरूरी है टीचर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। वो मोरल फ्रीडम जो है इस वक्त वो नहीं है। और देखिए, गैर तदरीसी जो अमला है, वो तदरीसी अमले के बीच में दबा हुआ खुद को क्यों? मैं सर 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, अगर मेरा नेटवर्क डाउन होता है तो मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी से गुजारिश कर रही हूँ कि अगर मैं स्क्रीन से हट जाऊं तो इस बातचीत को आगे लेके चलेंगे। हाँ सर, बोलिए आप। तो जो मेरा मोरल फ्रीडम है, उसके बिना, उसके बगैर हम किसी भी मुआशरे में, तालीमी निज़ाम में, स्टूडेंट्स की तरबियत में हम नाकाम साबित होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो एटीट्यूड है हमारा, इंडिफरेंट जो एटीट्यूड है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ये हमें बदलना है। इस बहुत जरूरी बात पे जो मुश्ताक सदफ सर ने और खुर्शीद बिस्मिल साहब ने बहुत ही जरूरी बात को उठाया है। मैं शबाना खान मैडम से भी जानना चाहती हूँ कि एक हसास उस्ताद, एक हसास टीचर होने के बावजूद हमें एजुकेशन की पॉलिसीज पर भी नजर रखनी ही पड़ती हैं। कहीं ना कहीं कंटेंट कहाँ से आ रहा है, उसमें सियासत का कितना दखल है, बजट क्या है, इन सारी बहुत रूड जिसे कहेंगे और बहुत जरूरी
चीजों पर भी हमें दखल रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो शबाना मैम, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या इस बारे में कहना है, जो एजुकेशन पॉलिसी पे बात हम लोग कर रहे हैं अभी? जी देखिए, मैं बाकी लोगों से गुजारिश करूंगी वो फोन अपना माइक म्यूट कर लें, कुछ आवाजें आ रही हैं जो कि शायद पीछे से आ रही हैं। माइक म्यूट जिसके करो। पास भी आ रही है वो म्यूट कर लें माइक। जी देखिए, जहाँ तक एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। लेकिन एक चीज है कि जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, पहली बात तो देखिए बिल्कुल खरी और सही बात ये है कि बहैसियत एक टीचर के, मैं ये बात जो है वो बिल्कुल बिला मुबालगा कह सकती हूँ कि जब एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है, जब पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसमें मतलब टीचर से पूछा नहीं जाता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी बात है ये भी। जो पढ़ा रहा है, जो जिसका बच्चों के साथ कनेक्शन है, तो वो वहां पर उससे पूछा नहीं जाता कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। दूसरी बात, एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिनको शायद एजुकेशन का ई भी ना पता हो, तो ऐसे लोग भी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल होते हैं। क्या बात। फिर एजुकेशन पॉलिसी में जिन नुकात को या जिन सिलेबस के नाम पे जिन चीजों को रखा जाता है, आप देख लीजिए कि उसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा उससे वास्ता नहीं पड़ता। तो एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी चीजों को रखना कि जिनसे बच्चों का, मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल दूं, जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को आप उठा करके देख लें, कहीं भी मतलब जब बच्चा जो है वो अपने 5 साल डालता है, 7 साल डालता है, और वहां से निकल करके जब वो जब आता है अपने मुस्तकबिल को बनाने की जब बारी आती है, तो उसको ऐसे लगता है कि ये किसी एक खास जगह पे ही हमको नौकरी मिलेगी, इसके अलावा जिंदगी के किसी भी इसमें ये पढ़ाई जो है वो कहीं पर मैच नहीं होती है, कहीं पर टच नहीं होती है। उसी तरीके से जब एजुकेशन पॉलिसी जब बनाई जाती है, तो वहां पर बच्चों की नफ्सियात को भी जो है वो सामने नहीं रखा जाता, बिल्कुल नहीं रखा जाता कि बड़ी बड़ी किताबें हैं या उसकी उम्र से बढ़ करके सिलेबस है, तो वहां पर बच्चा जो है वो खुद को उसके साथ में अटैच नहीं पाते हैं। फिर आप ये देखें कि जब एजुकेशन जब निसाब तैयार किया जाता है, तो निसाब के मामले में भी हमने ये देखा है कि निसाब के मामले में भी जब निसाब का सिलेक्शन होता है, जब चैप्टर का सिलेक्शन किया जाता है, या जब उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बिठाई जाती है कि भाई देखो कि इसमें गलतियां कहाँ हैं कहाँ नहीं है, एक्सरसाइज कैसे होगा, हमने ये देखा है कि वो लोग होते हैं जो वो लोग उस कमेटी में शामिल होते हैं जो सुटेबल नहीं है। जैसे कॉलेज के निसाब को फिर से अच्छी तरीके से उसको पॉलिश करने के लिए ऐसी कमेटी बिठाई जाती है जो स्कूल में पढ़ाती है, लेकिन वो काम कर रही है कॉलेज के लिए। तो वहां पर जो कहते हैं ना कि स्कूल और कॉलेज में जहाँ जहानत में IQ लेवल में फर्क है, वहाँ हम क्या करने के लिए जा रहे हैं उसमें भी फर्क है। तो वो चीज आगे जा करके निसाब में वो चीज जो है वो नजर आती है कि बच्चे को जो चाहिए, बच्चा जो पढ़ना चाहता है, उससे अलग जो है वो एजुकेशन पॉलिसी में उससे अलग चीजें जो है वो तैयार की जाती है। तो इसका प्रतिमा जी सर प्रतिमा जी, ये जो शबाना जी जो बात कह रही हैं, शबाना जी जो बात कर रही हैं, वो बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड से नहीं है। वो एजुकेशन पॉलिसी दूसरी चीज होती है। शबाना जी मतलब कि ये बिल्कुल क्लियर करना है कि जो तालीमी जो प्रोग्राम है वो दूसरी चीज होती है। तालीमी जो प्रोग्राम है वो उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तय कर रखा है।
اور جو شبانہ جی وہ کہہ رہی ہیں وہ تعلیمی پروگرام کی بنیاد نہیں ہے، وہ نصابات میں جو رد و بدل جو ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھے، یہ دوسرا ایک پہلو ہے، یہ تعلیمی پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ بالکل نہیں سر، ہے۔ لیکن شبانہ جی کی بات سے ایک بات تو نکلی ہے نہیں میری بات سنیے فاطمہ جی، میری بات سن لیجیے، ان کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ بالکل درست ہے، اس سے کوئی مجھے اس پر کچھ اظہار خیال نہیں کرنا ہے، لیکن تعلیمی جو پالیسی ہے اور تعلیمی جو پروگرام ہے وہ اس کا نام نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے جو کنسٹیٹیوشن نے طے کر رکھا ہے، جو ہمارا تعلیمی جو پروگرام ہے وہ جمہوری اقدار کی بنیاد پر ہونی چاہیے، مساوات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، انصاف کی بنیاد پر ہونی چاہیے، رول آف لا کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ٹالریشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے، فریٹرنیٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کوآپریشن کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے ہمارا جو ہے کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو تعلیمی پروگرام میں۔ شبانہ میم کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی، دیکھیے ٹاپک کیا ہے، ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد جو ہے، استاد کو کس طریقے ہونا چاہیے اور استاد کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اب وہاں پر آپ دیکھیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ استاد کو کیسے ہونا چاہیے، وہاں پر یہ سارا ڈسکشن جو ہے اسی کو لے کر کے ہو رہا ہے۔ جی، اور مشتاق سر، میں ایکچولی شبانہ جی کی بات سے میرا ایک سوال جو یہ نکلا ہے، مشتاق سر ایک سوال میرا آپ لے لیجیے، میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں کہ شبانہ خان جی کی بات سے مجھے جو ذہن میں بات آئی ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں اعتراض ہے، چاہے وہ کنٹینٹ ہے، چاہے وہ کوئی بھی پالیسی ہے، اس کو بنانے والے وہ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ مطلب جو ایجوکیشن کے ماہر لوگ ہیں وہ وہاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ وہاں پر کیوں نہیں ہیں؟ ہم میری ایک بات سنیے، یہاں سب جی سر یہ بات صدر صاحب پلیز میں یہ عرض کروں گا۔ جی خورشید سر آپ بولیے، خورشید سر بولیے۔ دیکھیے یہ کہنا کہ وہاں ہمارا کوئی نہیں ہوتا ہے بات کرنے والا ٹیچر، یہ تو نہیں ہوگا کہ 4 لاکھ ٹیچر جو ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمارا ڈائریکٹر وہاں ہوتا ہے، ہمارا سیکرٹری ایجوکیشن کا ہوتا ہے، اور موسٹلی کئی پروفیسر ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیچر نہیں ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، لیکن فیکٹ یہ وہ حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے جب یہ چیز پروسیس ایکچولی یہ ہے کہ یہ سب جو ہے اساتذہ کی میٹنگ کبھی نہیں ہوتی ہے سر، کبھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو کیا چاہیے مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ شبانہ جی ٹیچر رہی ہے اس چیز کو بھول گئی ہیں کہ آپ سگنیچر کر کے آنریریم لے کے واپس آ جاتی ہیں، یعنی ٹیچر کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ٹیچر میٹنگوں میں جا کر کے آنریریم لے کے سائن کر کے چلے آتے ہیں۔ آپ اساتذہ کی بات کر رہی ہیں، سر آپ ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ ساتھ نہیں کہہ سکتے سر، آپ سب کو ایک ساتھ نہیں کہہ سکتے نہیں، میں تو صدر صاحب وہی لوگ نہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کسی پالیسیز میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کسی انعام کے لیے نہ سفارش کروائیے، ان گزار دی تقریر کرنے والا ہمیشہ یہ سمجھتا ہے۔ پرتیما جی آپ مجھے اجازت دو، میں ایک نظم پڑھ لوں میں۔ جی خورشید سر آپ بالکل پڑھیں۔ میرا اگلا سوال لیکن آپ لوگوں سے یہ ہوگا، جو بھی گیپ دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ ہماری بات میں، چاہے ایجوکیشن کی پالیسیز میں، وہ گیپ کہاں ہے، وہ گیپ کیسے بھرا جائے گا؟ خورشید سر آپ نظم پڑھیں اپنی۔ تو نور کا ایک پیالہ ہے، استاد کے نام، تو نور کا ایک پیالہ ہے، ظلمات مٹانے والا ہے، رونق ہے بزم ہستی کی، عقبا کو بنانے والا ہے۔ محلوم عام مکانوں میں چوباروں میں تہ خانوں میں، بازار کی رونق ہے تجھ سے تو کھیتوں میں کھلیانوں میں۔ تو مشکل کو آسان کرے، حیوانوں کو انسان کرے، مٹی بھی تجھ سے سونا ہے، پرکھار کو بھی ریحان کرے۔ تو قلم بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور قوموں کی دستار بھی ہے۔ تو قلم بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور قوموں کی دستار بھی ہے۔ واہ! ہر مندر تجھ سے زندہ ہے، مسجد کا تو مینار بھی ہے۔ تو پیار وفا کی مورت ہے،
तू प्यार वफा की मूरत है, तू सब्र गिना की सूरत है, अफाल तेरे लासानी है, तू सरता पा एक रहमत है। लेकिन अब लेकिन जरा सुनिए, लेकिन पहली सी अब वो बात कहा, तू रहमत की सौगात कहा, उस्ताद तो अब एक धंधा है, वो हिर्स हवस का बंदा है, ट्यूशन का है बाजार है वो, अब कौन कहे गमखार है वो, अब ड्यूटी से वो गाफिल है, खुद डूब रहा जो साहिल है, पीएचडी इसकी डिग्री है, तकदीर मगर क्या बिगड़ी है, सब मिलने से कतराते हैं, अपने भी तो ठुकराते हैं, ये सानिया सबसे बदतर है, अब टीचर से वो लीडर है, अब अल्लाह ही एहसान करे, उस्ताद को फिर ज़ीशान करे। तो इसमें मैंने टीचर का जो रोल है उसका भी जिक्र किया है कि जो दुनिया की रौनकें हैं ये टीचर से है, लेकिन फैक्ट ये है कि आज जो हमारा टीचर है इसके स्पेल में थोड़ा सा चेंज करता है, ये मोस्टली अब चीटर भी बन गया है। मैं कई एक मिसालें दे सकता हूँ कि इस वक्त पर्टिकुलरली हमारे स्कूलों में सूरत हाल ये है कि टीचर जो है क्लास में जाता है, मोबाइल अपना पकड़ा हुआ और बच्चों को कहता है चलो काम करो। मुझे बताइए, टीचर को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, वो आधे घंटे के लिए भी मोबाइल बंद नहीं रखता है, और उसका नतीजा क्या है कि उसको बच्चे भी कॉपी करते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि भाई टीचर का इस तरह का किरदार है, इस तरह का इसका रोल है, तो आप मुझे बताइए कौन सी सोसाइटी जो है हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो हमने पहले बुनियादी बात की कि हमारी जो एज ए होल नेशन ही रेडी नहीं है एजुकेशन के लिए, उसने इसको इकोनॉमिकली वायबल डिपार्टमेंट नहीं बनाया है, पॉलिटिकली इसको पुश बैक नहीं मिल रही है डिपार्टमेंट को। ये एक छंगलिया है, छंगलिया जैसे एक हाथ में छठी उंगली होती है, वो कोई अननेसेसरी, इस तरह से एक छंगलिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट सारे नेशन के लिए। तो बहरहाल फिर भी ये है कि जैसे कि अभी सदर साहब कह रहे हैं कि मायूसी की बात नहीं है, मायूसी तो वाकई नहीं करनी चाहिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त प्रवेल कर रही है, इसमें तो सारे का सारा अंधेरा ही नजर आ रहा है। जो कसर थी वो कुछ कोविड-19 ने भी पूरी कर दी है, लेकिन सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सदर साहब फरमाइए। नहीं मैं ठीक है, हम तो जितने हैं यहाँ पर मुश्ताक वानी साहब हैं, प्रतिमा जी की खुद राय आ रही है सामने, शबाना जी भी, खुशी साहब, सबकी अपनी राय है। और नहीं सर, मेरी राय नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ आप लोगों की बात से जो मुझे सवाल सूझ रहा है। जी शबाना राय है, और लोगों की इजाजत हो, जैसे अभी मोबाइल का तस्करा हुआ, जैसे अभी खुर्शीद शबाना जी इनडिसिप्लिन हो रहे हैं हम लोग। प्रतिमा जी ने मुझे मौका दिया था, हम इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। ठीक है चलिए फरमाइए सदर साहब। मैं ये कह रहा था कि जो भी राय शबाना जी ने अपनी रखी, या खुर्शीद साहब ने, या प्रतिमा जी ने सवाल की शक्ल में अपनी राय रखने की कोशिश की, या मैं, सबकी अपनी अपनी जगह एक अहमियत है, सब सच पर मबनी है, कोई किसी से नहीं है। और जाहिर है जब लोग हैं, 4-5 लोग हैं, सबकी अलग अलग राय आएगी, तो एक तवाजुन बरकरार होता है, गुफ्तगू में एक तवाजुन रहता है और रहना भी चाहिए। हम एसातिज़ा जो हैं, वाकई हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ये सोचना है हम लोगों को। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स भी तन आसानी से काम लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने, यानी अब अटेंडेंस है, तो अगर 2 दिन वो नहीं आते हैं तो हम एसातिज़ा से वो जो है एहतरामन या जिस तरह से भी हो कि सर अटेंडेंस दे दीजिए और ये कर दिया, डिसिप्लिन जो है हमारा वो हम बिगाड़ते जा रहे हैं। अच्छा, जो इंतज़ामिया है, वो इंतज़ामिया पर जो दबाव है यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, उसके साथ इंतज़ामिया दबाव में रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशनल जो सिस्टम है वो चरमरा सा गया, जो निज़ाम है हमारा। तो इन चीज़ों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। हमारा जो सिस्टम है पढ़ाने का, अब देखिए कि अभी जो है ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग भी ले रहे हैं क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या होना चाहिए कि क्या हम गूगल मीट से हम क्लासेस लें, क्या हम जूम से क्लासेस लें, क्या गवर्नमेंट हमें वो सारी सहूलियात
या इंतजामिया वो सारी सहूलियात हमारे घर पे वो मुहैया नहीं करा सकती और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए स्टूडेंट्स को, तो सक्सेसफुल इसलिए नहीं है ये तरीका, इसलिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे घरों में उस तरह से नहीं है, उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए हम अपने सिस्टम को घर पर रखेंगे। अब छोटी छोटी तस्वीरों में 25 बच्चे क्लास में बैठे हुए, हमारे यहाँ वो सिस्टम जो मगरिब में है वो मशरिक में क्यों नहीं है? वहां पर एक लेक्चर का भी सिलेक्शन होता है, तो उसमें जो है ना 200 लोग जो है हॉल में बैठे हुए होते हैं, बड़े पर्दे पे होती है, उसके इंटरव्यू होते हैं, उसको दिखाए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आप देखिए, जो बाहर मुल्कों में जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है टीचर्स का, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ तो बंद कोठरी में भी अगर इंटरव्यू हो और ये भी हो कि हम घर से इंटरव्यू लेकर के आके सिलेक्शन करते हैं तो हम कर सकते हैं, इसलिए कि हमें किसी का करना है। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि सिस्टम को, तालीमी सिस्टम को एक बदलना है, तालीमी निसाब को बदलना है, कंटेंट ऑफ एजुकेशन को बदलना, और हमारी जो तालीम है और जो तहजीब है उन दोनों के रिश्ते को लेकर चलना है। जो फलसफा हयात है और जो तालीम है उसके गहरे रवाबित आपस में पैदा करना है। ये वो सब शिके हैं, वो ये वो ग्रुप्स हैं जिस पर हम वाइडर रेंज में हम अगर गौर करते हैं या सोचते हैं एज ए इंटेलेक्चुअल, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी नहज पर एक मुआशरे की बेहतरी की तरफ कदम उठा सकते हैं। मेरा कहना ये है। जी जी, बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने सर। शबाना मैम, आप मोबाइल के ऊपर कुछ अपनी राय रखना चाह रही थी, आप रखें, फिर मैं मुश्ताक अहमद वानी सर से। जी शबाना जी, माफी चाहता हूँ, मुझे बोलना था इसलिए आपसे। नहीं, कोई डिस्कशन में चलता रहता है। नहीं सर, जी डिस्कशन है, हम लोग तो बहुत डिसिप्लिन में हैं। मुश्ताक सदर सर, हम लोग तो बहुत डिसिप्लिन में हैं। न्यूज चैनल पे हम लोग अगर देखेंगे तो मालूम चलेगा हम लोग बहुत डिसिप्लिन में। और क्या, वहाँ तो सुबह से रात तक इनडिसिप्लिन ही रहते हैं सब। जी तो सर देखिए, जैसे जी मैम, मोहतरम खुर्शीद सर ने कहा, मोबाइल के लिए कहा, देखिए वो तल्ख सच्चाई है। हम लोग खुद कॉलेज में बहुत बार मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल नॉट अलाउड होता है, सब कुछ है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर में कल तक जहां हम बहुत सख्त थे बच्चों के साथ के मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां आज हम लोगों ने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव कैसे आप कर सकते हैं। ये मोबाइल, इसी मोबाइल में लाइब्रेरी भी मौजूद है। आप नेट पर जाएं, आप किताब का नाम टाइप करें, आपको वो किताबें मिलेंगी। मैं खुद अपना तजर्बा बताती हूँ, मैं क्लास में मोबाइल यूज करवाती हूँ, और इसलिए करवाती हूँ कि जहां पर कोई लेसन मुझे पढ़ाना है और मुझे वो चीज, जैसे मुझे मिस्र दिखाना है, जैसे मुझे ईरान दिखाना है, जैसे मुझे ईरान के फूल दिखाने हैं, जैसे मुझे ईरान का लिबास दिखाना है, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि मैं टाइप कर रही हूँ, आप भी टाइप कीजिए, आप नेट पर जाइए और आप देखिए कि ईरान के में फूलों की कितनी किस्में पाई जाती हैं, या आप देखिए कि एहराम मिस्र कैसे बनाए जाते थे, उसकी टेक्निक क्या होती। तो मोबाइल का या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है। हाँ, ये बात जो है वो मोरालिटी के खिलाफ जाती है कि उस्ताद क्लास में बच्चों को उनके काम पर लगा दे और खुद इस्तेमाल करे, वो चीज जो है वो इखलाकी कदरों के खिलाफ जाती है। तो जी, मैंने इसी पॉइंट को टच किया है। जी, इसी पॉइंट का मेरा भी मकसद है। मेरा मकसद तो नहीं है कि क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो न्यू नॉर्मल शब्द एक आया है, अब तो मोबाइल क्लासरूम का हिस्सा बन गया है, पूरा क्लासरूम मोबाइल पर ही हो रहा है। जी, हम कहीं ना कहीं उसको, अब हम लोग चूंकि अपने इस डिस्कशन के आखिर तक पहुंच रहे हैं, इसके अंजाम तक पहुंच रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब भी हैं जो खुद एक टीचर हैं। मैं उनको भी हैप्पी टीचर्स डे कहती हूँ, और इन सारी जो हम लोग जिन चीजों पे बात कर रहे हैं उनकी भी राय जानना चाहेंगे। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी सर। प्रीतिमा जी, बहुत बहुत आप सबको मुबारक, खुर्शीद बिस्मिल साहब को मुबारक, शबाना खान साहिबा को मुबारक,
आपको मेरे मुबारक हम हो। नाम, मेरे हम नाम और मेरे हम ख्याल, क्योंकि आज इस फेसबुक पेज पे 2 मुश्ताक हैं और मेरे ख्याल क्या में बात है। गालिब ने बिल्कुल बजा फरमाया जी। था कि हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार। बेजार, ये ये माजरा आया क्या ना, है? ये माजरा क्या है? तो मैं यकीन जानिए, लेकिन आप हम बेजार तमाम से बिल्कुल नहीं है जनाब। हम बेकार नहीं है। हम लोग बेदार कोई हैं, बेजार नहीं है। हम 3 बेदार बैठे। हम बेजार हैं जनाब। यकीन जानिए कि मैंने आप तमाम अहम शख्सियत से बहुत कुछ सीखा। जी। खुर्शीद बिस्मिल साहब ने तो पूरी नज्म उस्ताद के मकाम और मर्तबा, यानी दोनों पहलू दिखाए, यानी जिस तरीके से किसी सिक्के के दोनों पहलू दिखाए जाते हैं, उसी तरह से कि मुस्बत इसका बेशक। किरदार क्या है, टीचर क्या, उस्ताद का आजकल के मुआशरे के अंदर इसका सही मकाम और मर्तबा क्या था, क्या ये वाकई को मेमारे कौम जिसको हम कहते हैं, क्या आजकल के दौर में ये मेमारे कौम है या मिसमारे कौम है, बहरहाल ये बात अपनी जगह पे। हमारे मुश्ताक सदर साहब ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी तल्ख हकीकतों का इजहार किया, चूंकि मेरी तरह ही ये भी बफजल अल्लाह जिंदा ज़मीर इंसान हैं, और ये जिस मकाम और मर्तबे पर पहुंचाया है अल्लाह ने इनको, वहां मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि इस शख्स की जाती सलाहियतों ने इसको उस मकाम पर पहुंचाया है। और मैं मुश्ताक सदर साहब को आज से 25 साल पहले से जानता हूं कि जब ये बात करते हैं तो लाग लिपट में बात नहीं करते, बड़ी यानी साफगोई से बात करते हैं। और यकीन जानिए कि जो साफगोई से बात करेगा तो उसको बहुत सारे लोग उसके हरीफ भी बन जाते हैं, लेकिन उसका ज़मीर रोशन होता है अंदर से। और मैं जाती तौर पर ये कहूँगा कि आज टीचर्स डे है, मैं 2-3 बातों पर अपनी बात खत्म करूँगा। टीचर वाकई एक समाज का एक ऐसा जिम्मेदार फर्द है और ऐसा नाजुक तरीन पेशे से इसका ताल्लुक है कि इसको फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। टीचर आज से 200 साल पहले भी टीचर ही था, और आज हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं तो आज भी हम टीचर ही हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर हो, बुनियादी तौर हम सारे टीचर हैं। अब टीचर्स डे के मौके पर मैं ये समझता हूं कि अगर समाज के अंदर वाकई कोई तब्दीली लानी, जिस तरीके से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो सियासत का शोबा हो, चाहे हमारा तालीम का शोबा हो, हमारे टेक्नोलॉजी का शोबा हो, हमारा यानी क्या कहते हैं समाजियात का शोबा हो, इक्तिसादियात का हो, मुआशियात का हो, नफ्सियात का हो, गर्जे के कोई भी शोबा देख लीजिए, एक बुनियादी तौर पर हर बच्चा एक टीचर ही के हाथ से निकलता है। यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो भी एक टीचर की तरबियत से निकले हैं, किसी गुरु की तरबियत से निकले हैं। और टीचर को मैं कहता हूं कि सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आनी चाहिए, जिससे ये मॉडल बन सकता है मुआशरे के लिए, समाज के लिए, वो ये है कि इसको एहसास जिम्मेदारी हो इसके अंदर। दूसरी अहम बात जो टीचर के लिए बहुत जरूरी है, वो अखलाकी, रूहानी और उन तमाम समाजी व तहजीबी कदरों का अलमबरदार हो। और जब ये कदरें और जब ये एहसास से जिम्मेदारी उसके साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह वो अपने पेशे से कभी भी लापरवाही नहीं बरतेगा, वो अपने पेशे को इबादत समझेगा। और यकीनन उस्ताद का पेशा वो पेशा है कि जिस तरह से हम मंदिर और मस्जिद को या किसी मुकद्दस मकाम को क्या समझते हैं, तकद्दुस है उसका हमारे दिल के अंदर, हमें एक एहसास होता है कि हम मंदिर में जा रहे हैं, किसी ऐसी हस्ती के आगे अपना सर जो है रखने जा रहे हैं, उससे अपनी इल्तिजा रखने जा रहे हैं। तो वही ज़मीर और वही एहसास रखकर टीचर को क्लास में जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखकर काम करना चाहिए।
بے شک سر، وانی سر آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. میں آپ کو معذرت کے ساتھ بیچ میں روکنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہماری ڈسکشن کا ٹائم اب تھوڑا سا ختم ہونے کی طرف آ گیا ہے. میں آپ کی اس بات کو یہاں پر بس اتنا ایک رنگ دینا چاہتی ہوں کہ کہیں کہیں پر ہم یہ مانتے ہیں کہ جو استاد ہے یا جو گرو ہے وہ سب سے اعلیٰ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کے بارے میں اور یہاں تک کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ بھی ہم کو بتاتا ہے. تو اس کی جگہ اس کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے ہی. اور یہ ڈسکشن ہم ایک دن ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ روز سوچنے والی بات ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے صحیح جگہ پر نہیں ہیں، ایجوکیشن سسٹم کو لے کے، ایجوکیشن پالیسی کو لے کے، ٹیچرز کے حق و حقوق کو لے کے، تو وہ کیوں نہیں ہے، انہیں ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. اس پر ہم لوگ انشاءاللہ بہت بار کوشش کریں گے ڈسکشن کرنے کی. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا دن ایک ہی نہیں ہوتا، مدرس ڈے مناتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ماں کا ایک دن تھوڑے ہی ہوتا ہے، ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے. ویسے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیچر کا بھی ہر دن ہوتا ہے، کوئی ایک دن تو ہم بس یوں مناتے ہیں جیسے ہم جن دن منا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ ڈسکشن ختم تو کرنا ہوگا. آخر میں آپ سب سے ایک بہت ہی ضروری، آپ جو مناسب سمجھیں، ایک میسج ہمارے دیکھنے والوں کو، ملک کے سارے ٹیچرز کو، اسٹوڈینٹس کو آپ کی اور سے جائے میں چاہتی ہوں. سب سے پہلے میں جناب خورشید بسمل صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کے دن اپنا ایک پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دیں. جی پیغام جلدی میں ہی اپنا پیغام دوں گا. استاد تیرے دم سے رونق جہان کی ہے، تیری بقا سے عظمت پیر و جوان کی ہے، تیری ہی دستگانے ہے آدمی سنوارا، انسانیت کو تو نے ہر دم دیا سہارا، تو نے ہی بحر و بر کے اسرار سارے کھولے، تو نے ہی کہکشاں میں انسان کو اتارا، تیری ہر ایک کوشش اونچی اڑان کی ہے، استاد تیرے دم سے رونق جہان کی ہے. علم و ادب کے مرکز تو نے ہی تو سجائے، صحراؤں میں ہزاروں تو نے ہی گل کھلائے، راز حیات تو نے اقوام کو بتائے، ڈوبے ہوئے سفینے ساحل پہ جا لگائے، آقا نے تیری عظمت خود ہی بیان کی ہے، استاد تیری دم سے رونق جہان کی ہے. تو انبیاء اللہ نے تجھ کو بخشی ہے شان امتیازی، تو انبیاء کا وارث ہندی ہے یا حجازی، ہوں کتب آسمانی یا فلسفہ یونانی، استاد کے ہی ہاتھوں سب کی ہے سرفرازی، تفسیر تجھ سے باقی کون و مکان کی ہے، استاد تیرے دم سے رونق جہان کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو اگر کسی نے عزت دینی ہے، مینٹین کرنا ہے، اس کو پھر ریسٹور کرنا ہے، یہ بہرحال استاد کو ہی کرنا ہے. اور میرے خیال ہے استاد کے بغیر کسی سماج، کسی خوبصورت سماج کا تصور جو ہے نہیں کیا جا سکتا. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ لیٹ اس ہیو اے گڈ ٹیچر، لیٹ اس ہیو اے گڈ ٹیچر. تھینک یو ویری مچ. واہ، بہت بہت شکریہ سر. اب میں ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب سے چاہتی ہوں کہ مختصر میں اپنا پیغام دے ہمارے سننے والوں کو، ناظرین کو. میرا یہ پیغام بھی آپ کہہ لیجئے یا کچھ اور نام دے دیجئے. میرا اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ خدارا اسکولوں کو، کالجوں کو یا یونیورسٹیوں کو ڈگری، ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ دینے کا کارخانہ نہ بنایا جائے. صرف ڈپلوما دینے کا، سرٹیفکیٹ دینے کا کارخانہ ہی تصور نہ کیا جائے. اسے تہذیب کا گہوارہ بنانے کی بہت ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ہے یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے. اس کے تقدس کو برقرار رکھنا اساتذہ کی ذمہ داری ہے، اور اسٹوڈنٹس کی بھی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے وہ استاد کی عزت کریں، اور تہذیبی جو ہمارے ہندوستان کی جو تہذیبی روایتیں ہیں، جو شاندار جو ثقافتی ماضی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم معاشرے کی تشکیل و تعمیر کے لیے آگے بڑھ کے آئے. اس لیے کہ آج جو شاگرد ہے یعنی طالب علم ہے، کل وہ اساتذہ بنیں گے،
वो उस्ताद होंगे। बिल्कुल। इसलिए उस्ताद की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस मुकद्दस पेशे को बरकरार रखें, वरना टिकटॉक पर जो टीचर्स नजर आते हैं उस तरह का माहौल खुदा न करे कि हिंदुस्तान में क्रिएट हो। वो बहुत ही जानलेवा और खूनी एक पेशे की शक्ल में अख्तियार करता जा रहा है। मेरा इशारा है, मैं बहुत खुल के बात नहीं करना चाहता हूँ। उस पेशे से उस्ताद को दूर रहना है। उस्ताद का पेशा बहुत मुकद्दस है। आपके क्लासेस में कलरफुल जो है प्रेजेंटेशन होता है, मौजूदगी होती है, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, हर उम्र के बच्चे होते हैं। ये वो मुकद्दस पेशा है कि इस पेशे को बहुत अहमियत देने की जरूरत है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पेशे को सबसे आला वो अरफा बताया है। इस मुकद्दस पेशे की कदर खुद करनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्टूडेंट्स को भी तैयार करना है, उन्हें तहजीब ऐसे आरास्ता करना है कि वो यही मेरी राय है और यही मेरा पैगाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुख्तसर में बहुत बड़ी बात कही है। एक बूंद में पूरा सागर आपने कहा है, समझने वाले के लिए इशारा काफी होगा। काश ये पैगाम आपका दूर तक जाए। अब मैं मोहतरमा शबाना खान साहिबा से चाहती हूँ कि अपना मुख्तसर में पैगाम दें। बहुत शुक्रिया। ये पैगाम भी है और मशवरा भी है। टीचर को जो है वो सिर्फ टीचर होने के अलावा उसका माहिर नफ्सियात होना बहुत जरूरी है। नफ्सियात की थोड़ी बहुत शुद्ध होने से ये होगा कि बच्चा जो है वो टीचर बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेगी, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगी, उसके करीब आ सकेगा टीचर, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। और दूसरी बात ये है कि मॉरल वैल्यूज के लिए ये एक मशवरा है कि टीचर्स को हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन मॉरल वैल्यूज पर यानी इखलाकी कदरों पर बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आज के दौर का बच्चा हर चीज इंस्टेंट चाहता है। उसको जो उसके दिमाग में आया है वो उसको फौरन चाहिए, और उसके यहाँ सब्र का मादा नहीं होता है, इखलाकी कदरें उसके यहाँ पर नहीं है। तो अगर इखलाकी कदरें हम देना शुरू करें अपने बच्चों को तो यकीनन बहुत सारी, मैं ये दावा तो नहीं कर सकती हूँ कि सारी मुश्किलें हल होंगी, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों का हल जो है इखलाकी कदरों में मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मैडम। और अब मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब से कहूंगी, पैगाम तो दे ही, साथ साथ वो सबको थैंक्स भी कहें, वोट ऑफ थैंक्स भी हमारे तहरीक की ओर से वो दें हमारे आज के 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को। मैं इस टीचर्स डे के मौके पर सबसे पहले आप तमाम हाजरीन को और अपने तमाम नाजरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ये मशवरा है कि ना सिर्फ टीचर बल्कि लेकिन टीचरों पर यह जिम्मेदारी पहले आयद होती है, क्योंकि उन्हीं के हाथ से, मैंने जैसे कहा कि छोटा और बड़ा ऑफिसर उसी के हाथ से निकलता है, टीचर के हाथ से, फिर वो कहीं अपनी मंज़िल मकसूद को पहुंचता है। मेरा ये पैगाम है आज के इस टीचर्स डे, इस यौम असातिज़ा के मौके पे, कि हर शख्स सच्चाई को और अपने अखलाक और किरदार को आला व आरफा बनाने की कोशिश करे और उसका अमली नमूना पेश करे। हर टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस भी मकाम पे है, जहां भी है, अपने यानी सच्चाई के साथ अपने अखलाक को, अपने किरदार को और अपनी जिम्मेदारी को खुश उसलूबी से निभाए, ताकि वो जो उसका मकाम है, जो उसका मर्तबा है, उससे ये आया हो कि वाकई इसने कोई अपना हक अदा किया है। एक चीज़। दूसरा पहलू मेरे लिए जो है वो इजहार तशक्कुर का है। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई मोहतरम जनाब खुर्शीद बिस्मिल साहब का शुक्रिया बजा लाता हूँ कि वो आए, अपना कीमती वक्त निकाला इन्होंने और बहुत सी अच्छी बातों से हमें रोशनास किया। हमें बड़ी बेहतरीन नसीहत आमेज बातें से सुनने को मिली। इन्होंने अपने कलाम से भी नवाजा टीचर्स डे के हवाले से, बिलखुसूस टीचर को मौजू बनाया बहुत अच्छे उम्दा अल्फाज में। और उसके बाद में अपने दोस्त
और अपने छोटे भाई की तरह हैं मेरे, अगरचे इल्म अदब में बहुत आगे हैं लेकिन उम्र में मुझसे छोटे, मेरे हम नाम और मेरे हम ख्याल जनाब डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब का, कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला, वो आज टीचर्स डे के मौके पर आए और भरपूर और बड़ी मुफीद बातें, बड़े मुफीद मशवरे इन्होंने हमें दिए, हमारे नाजरीन को दिए। सुनने वाले जो जहाँ हैं इंशाल्लाह वो इन पर अमल करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर और तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से जनाब डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब का शुक्रिया बजा लाता हूँ। और इसके बाद में मोहतरमा शबाना खान साहिबा का भी तहे दिल से जो है शुक्रिया बजा लाता हूँ कि वो गूनागूं मसरूफियात के बावजूद, जो बहुत सारे मसरूफियात होते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन बहुत सारा दोहरा काम करती हैं, घरेलू कई मामलात होते हैं, कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि घर आंगन असल में ख़वातीन संभालती हैं और मर्द बाहर की दुनिया को ज़्यादातर देखता है। तो मैं ज़ाती तौर पर मोहतरमा का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ अपनी जानिब से और तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से कि आपने बड़ा अपना कीमती वक्त निकाला और इस जो है आज के यौम उस्ताद असातिज़ा के मौके पर अपने मुफीद से हमें नवाजा। और आखिर पर मैं अपनी छोटी बहन की तरह मैं हमेशा इनको जो है मुबारकबाद देता हूँ इस बात कर आप पर जो भी जिम्मेदारी तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से आई, आपने खंदा पेशानी से, हंसते हुए चेहरे से आपने हर उस जिम्मेदारी को बड़ी खुश उसलूबी के साथ निभाया है कि हमारे पास अल्फाज नहीं हैं आपकी तारीफ के लिए। और वो हैं मोहतरमा प्रतिमा सेना साहिबा के जिन्होंने बड़ी उम्दा यानी संजीदगी का मुजाहिरा किया और बड़े एक जो बेहतरीन एक निज़ामत के फ़राइज़ होते हैं उनको बजा लाया। मैं ज़ाती तौर पर अपनी जानिब से और अपने तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अराकीन की जानिब से और उन तमाम नाजरीन की जानिब से जो हमें आपको सबको देख रहे हैं, आपका शुक्रिया बजा लाता हूँ। और खुदा करे कि वाकई इस डिस्कशन से ऐसे नताइज सामने आए कि जो भी लोग हैं असातिज़ा कम्युनिटी हमारी जो है, जो हमारी असातिज़ा बरादरी है, वो वाकई ऐसा काम करने लग जाएं कि ऐसे ऐसे लोग पैदा करें कि जो नाबगाए रोजगार हस्तियां हैं हमारी दुनिया के अंदर, जिनको हम जो है अबुल कलाम आज़ाद जैसे और जनाब बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े जो है हमारे जितने कमाल के लोग रहे हैं, चाहे वो सियासी मैदान में हैं और दूसरे मैदानों में हैं, दूसरे शोबाजात में हैं, तो ऐसी पैदावार हो नई नस्ल में कि बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े फिलोसफर और बड़े बड़े सियासतदान पैदा हों। और वो सब जाहिर है कि असातिज़ा ही के हाथों से निकलते हैं। तो खुदा करे कि ये असातिज़ा को अपना मकाम और मर्तबे का सही एहसास हो और अमल पैरा। बेशक डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, अब आप तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपके साथ होने से हमारा काम हमें आसान लगने लगता है और बहुत ही भरोसे के साथ, बहुत ही यकीन के साथ हम भी अपना काम कर पाते हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि बीच में ये बात मज़ाहिया ढंग से कही गई थी, मैं इसको रिपीट करना चाहती हूँ कि चूंकि आप सभी ज़हीन लोग हैं, असातिज़ा हैं, इस समाज के, सोसाइटी के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, आप मोहतरम हैं, आप सभी जो टीवी की बहसें होती हैं वो तो कान फाड़ के रख देती हैं और दिल कहीं डुबा देती हैं। हमारी आज की ये बहस तो नहीं थी, डिस्कशन था और हम सब ने अपनी अपनी राय रखी, नजरिया रखा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। और मैं तो नजरिया क्या ही रखती, मैं आप लोगों की एक धागे को दूसरे धागे से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, जो मेरा आज काम था। उसके बीच कहीं कुछ मैंने ऐसा कहा हो जो कि सही ना हो तो उसके लिए मैं माजरत भी चाहूंगी आप सबसे। और हमारे नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी राय भी रख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। आज टीचर्स डे के मौके पे तहरीक बकाए उर्दू ने अपना एक फर्ज अदा किया, क्योंकि हम इल्मी अदबी दुनिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओर से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आज 5 सितंबर जो बहुत ही जरूरी तारीख है टीचर्स के लिए, उस पर 2 अहम डिस्कशंस यहाँ पे हुए, आप सब शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 5 बजे हम रोज की तरह अपने मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, इल्म और अदब की खिदमत करते रहिए, और हाँ, अपना ख्याल भी रखिए। बहुत अच्छा, नमस्ते, अल्लाह हाफिज, शब खैर।